Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me, Dr. Kamba Fatma from Women Institute of Rehabilitation Sciences, Ahmedabad. This presentation is a brief guide about postgraduate courses after DPT or BSPT in Pakistan. So students, once you are done with your BSPT or DPT, then what you have to do? सबसे पहले आपको हाउस जॉब के लिए अप्लाई करना है किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में, एंड 1 ईयर की हाउस जॉब आपको कंप्लीट करनी है. This is a must requirement as per UGC criteria to become a recognized physical therapist and for the completion of your degree also. Then you have to register yourself with Pakistan Physical Therapy Association or PEPTA, which is an organization that is meant for the professional development of physical therapy and physical therapists. PEPTA के साथ जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको फिज़िकल थेरेपी के प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब आपको पता चलती रहती हैं, और साथ साथ आप जो है वो रिकग्नाइज्ड हो जाते हैं विद वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन और थ्रू पेप्टा. Then what are the postgraduate courses or opportunities after DPT and how you have to choose them? सबसे पहले आपको अपना गोल या मिशन जो है वो पता होना चाहिए कि what you want to do actually. आप क्लिनिकल थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप एक एकेडमिक कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं. व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ योर गोल. देन यू हैव टू चूज द स्ट्रेटजी और डेवलप द स्ट्रेटजी एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट. तो पोस्ट ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आफ्टर DPT और BSPT इन पाकिस्तान, वो 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं. जैसे MPhil है, ट्रांजिशनल एंड पोस्ट प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, MS प्रोग्राम्स हैं एंड PhD प्रोग्राम्स हैं. सो MPhil इन फिजियोथेरेपी इज़ द फर्स्ट कैटेगरी जो कि आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर BSPT और DPT. एडमिशन क्राइटेरिया यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन and you have to pass GRE or GAT test with 50% of the marks, and you can take admission in MPhil in physiotherapy. Most of the leading universities in Pakistan are offering this program and you can take admission easily. Then there are further categories of MPhil after BSPT or DPT. MPhil in physiotherapy, MPhil in biomechanics, MPhil in kinesiology, and MPhil in basic medical sciences like anatomy and physiology. What is MPhil in physiotherapy? It is a 2-year research-based degree program, and it helps you to advance your career in academic and research, and you will be able to avail the teaching opportunities in physical therapy institutes. Like you want to join as a lecturer or you want to join as a educationist in the universities or colleges, you can do this, and you can also take admission in PhD programs in physiotherapy after doing your MPhil. So MPhil in biomechanics is the other category of MPhil. बायोमैकेनिक्स जैसे कि नेम इम्प्लाई कर रहा है, इसकी मूवमेंट साइंस से रिलेटेड आपके नॉलेज को एडवांस करने में हेल्प करता है. आप मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड यू कैन वर्क विद द क्लिनिकल थेरेपिस्ट, एनी क्लिनिकल थेरेपिस्ट लाइक OMPT स्पेशलिस्ट. आप मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ काम कर सकते हैं. एज अ बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट आप उनको हेल्प कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को और मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में. इसके अलावा आप जो है वो टीचिंग करियर भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लेक्चरर और एज एजुकेशनिस्ट इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फिजिकल थेरेपी और इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. देन देयर इज़ MPhil in kinesiology. MPhil in kinesiology जो है ये आपको इन डेप्थ नॉलेज देता है अबाउट फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मूवमेंट एंड एक्सरसाइज. यू कैन ऑल्सो वर्क विद द क्लिनिकल थेरेपिस्ट एंड यू कैन ऑल्सो join the universities and colleges as the researcher or as a teacher or lecturer. Then there is MPhil in basic medical sciences, anatomy and physiology. Physiotherapist can also do MPhil in basic medical sciences subjects such as anatomy and physiology, and you can enhance your understanding of form, structure and functions of the human body system. MPhil करने के बाद MPhil एनाटमी और फिजियोलॉजी करने के बाद आप मेडिकल कॉलेजेस को, आप टीचिंग इंस्टीट्यूट्स को, फिजिकल थेरेपी इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लेक्चरर और एज ए टीचर. So why you have to do MPhil after DPT or BSPT? What are the main objectives and what are the main pros of this program?
सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका गोल ये है, आपका मिशन ये है कि आप एज अ टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एकेडमिक कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, आप PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर एमफिल आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। जो HSC का क्राइटेरिया है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, वो भी आप मीट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर एमफिल। और इस तरह से आप जो है वो एज अ एकेडमिक कैरियर जो है वो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। सिमिलरली जो यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो भी एमफिल प्रोग्राम को एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या लेवल 7 पे जो है वो उसको इक्वेट करते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी जो है UK की, वो भी इसको मास्टर क्वालिफिकेशन ही कंसिडर करती है। देन द अदर कैटेगरीज ट्रांजिशनल डॉक्टरल प्रोग्राम्स। ट्रांजिशनल डॉक्टरल प्रोग्राम्स जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने BSPT ग्रेजुएशन किया है, जो BSPT ग्रेजुएट्स हैं, और उनके पास भी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं TDPT प्रोग्राम्स की, 1 ईयर का है और 2 ईयर का है। जो 1 ईयर का प्रोग्राम है वो एमफिल के इक्विवेलेंट नहीं है, और जो 2 ईयर का प्रोग्राम है सिर्फ वही एमफिल के इक्विवेलेंट है अकॉर्डिंग टू HSC क्राइटेरिया, वो 18 ईयर्स की एजुकेशन के इक्विवेलेंट है। लेकिन दोनों प्रोग्राम्स करने के बाद यू कैन हैव डॉक्टर टाइटल if you have done your BSPT. Then there is post professional doctor in physical therapy. इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, 1 ईयर का है और 2 ईयर का है, और ये भी डॉक्टरल डिग्री के प्रोग्राम्स हैं जो कि BSPT ग्रेजुएट्स के लिए ऑफर किए गए हैं। So why you have to do TDPT और PPTPT? पोस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम्स और ट्रांजिशनल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली BSPT ग्रेजुएट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं टू अपडेट द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड क्लिनिकल स्किल्स अकॉर्डिंग टू एप्टा VN, अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन का जो VN है 2020 का, उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रोग्राम्स जो हैं वो डिवाइस किए गए हैं। इसके जो BSPT ग्रेजुएट्स हैं उनको डॉक्टरल टाइटल अवॉर्ड करने के लिए और उनकी लिमिटेशंस को जो उनके प्रोग्राम्स की हैं उनको कवर करने के लिए। एट द सेम टाइम जो 2 ईयर का TDPT प्रोग्राम है वो एमफिल के इक्विवेलेंट भी है एज पर HSC क्राइटेरिया। थर्ड जो कैटेगरी है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की आफ्टर DPT और BSPT, वो MS प्रोग्राम्स हैं जिनको हम मास्टर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं इन वेरियस फील्ड्स, इन द फील्ड ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। यू कैन चूज द फील्ड ऑफ योर ओन इंटरेस्ट टू स्ट्रेंथन योर क्लिनिकल नॉलेज एंड टू एनहांस योर प्रैक्टिकल स्किल्स। कैटेगरीज हैं MS प्रोग्राम्स की पाकिस्तान में, जैसे ऑर्थोपेडिक एंड मैनुअल फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम है, न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी है, मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम्स हैं, कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी है, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी एंड वुमेन्स हेल्थ फिजिकल थेरेपी है। सो मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक एंड मैनुअल फिजिकल थेरेपी, इसको हम MS OMPT भी कहते हैं और हैंड्स ऑन फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं। It is to learn the practical evidence-based manual physical therapy techniques or interventions to treat the musculoskeletal conditions. इसमें आपको manual physical therapy की जो interventions हैं वो आप basically learn कर सकते हैं और उनको implement कर सकते हैं to treat your patients in the clinics, and you can also join the teaching career in colleges and universities after doing this MS. देन देयर इज मास्टर्स इन न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी। इसमें आपको बेसिकली जो न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं उनके ऊपर जो है वो कमांड आप अचीव कर सकते हैं, एंड यू कैन ट्रीट योर पेशेंट्स विद न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। आपको स्पेशलाइजेशन जो है वो उसमें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स की मिल जाती है, और यू कैन ट्रीट द पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। इसको हम MSNPT भी कहते हैं। देयर इज मास्टर्स इन मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी और MS की PT है। इसमें जो है वो आप थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस और इंटरवेंशंस लर्न करते हैं मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। देन देयर इज मास्टर्स इन कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, जिसको हम MSCPT भी कहते हैं, और इसके साथ आप जो है वो कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। आप हॉस्पिटल्स के अंदर इन पेशेंट वर्क कर सकते हैं, और जो है वो आप अपना क्लिनिकल सेटिंग में आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन देयर इज स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी मास्टर्स है, जिसको हम MSSPT भी कहते हैं। स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो बेसिकली एथलीट्स के साथ वर्क करते हैं, उनके स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उनकी फिजिकल कंडीशनिंग, ट्रेनिंग और फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स क्लब्स के अंदर काम करते हैं। स्पोर्ट्स फिजिकल एथलीट्स के साथ काम करते हैं, इंडिविजुअल एथलीट्स के साथ, और जो है वो टीम्स के साथ, डिफरेंट टीम्स जो स्पोर्ट्स की हैं उनके साथ काम करते हैं।
Then there is masters in women's health physical therapy. वुमेंस हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट में मास्टर्स करने के बाद जो है वो आप फीमेल्स की गायनिकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप यूनिवर्सिटीज़ में एज ए लेक्चरर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वाई यू शुड डू MS आफ्टर BSPT और DPT? अगर आपका विजन या आपका गोल ये है कि आप क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, आप अपना क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं, अपना ओन क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, इन पेशेंट फैसिलिटीज़ में या आउट पेशेंट डोर में, तो आपके लिए भी जो MS है वो एक बेस्ट चॉइस है। क्योंकि इसमें आप एक अपने प्रोग्राम ऑफ इंटरेस्ट है वो आप चूज़ कर लेंगे, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर लेंगे और उसमें आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप उसके बारे में अपना जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नॉलेज है वो एक्वायर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये आपको इनेबल करता है कि आप 18 ईयर्स की क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू HEC क्राइटेरिया। आप जो है वो एज ए लेक्चरर जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को। एंड यू कैन ऑल्सो बिकम एलिजिबल फॉर एडमिशंस इन PhD इन फिजियोथेरेपी आफ्टर डूइंग योर MS। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ जो है, जो कि MPH प्रोग्राम है, ये भी फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं आफ्टर DPT और BSPT। और इसमें जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इन हॉस्पिटल्स, इन कम्युनिटी सेंटर्स, और रिसर्च के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप फर्दर PhD कर सकते हैं, आप जो है वो फर्दर रिसर्चेस कर सकते हैं। लास्ट में जो है वो ऑप्शन जो है वो PhD प्रोग्राम्स हैं, जो कि फिजियोथेरेपी में PhD है। ये 3 to 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। आप MPhil के बाद भी, MS के बाद भी, या ट्रांसलेशनल या पोस्ट प्रोफेशनल प्रोग्राम जो भी आपने किया है आफ्टर BSPT और DPT 2 ईयर का, वो आपकी बेसिकली 18 ईयर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी, और फिर आप जो है वो PhD के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप अपना करियर जो है वो एकेडमिक करियर जो है वो आप इन्हांस कर सकते हैं एज अ रिसर्चर और एजुकेशनिस्ट इन फिजियोथेरेपी। So students, here we conclude our presentation. Thank you so much for listening to me. So students, I wish you good luck for the future, and thank you so much, and Allah Hafiz.